2023 কাকে চাইছে ত্রিপুরাবাসী? উপবাগরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল জোট নাকি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের 5 বছর, নাকি গ্রেটার টিটাল্যান্ডের দাবি, ভেদাভেদের রাজনীতি না উন্নয়নের বাণী? তার তথ্য উঠবে রণের জয়গুলি। দেখতে চোখ রাখুন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সম্প্রচার কুরুক্ষেত্র 2023। বেঁচে আছে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা। 28 লাখেরও বেশি ভোটার, 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে 59 জন প্রার্থী। প্রধান জাতীয় দলের সাথে আঞ্চলিক দলের কাকে চাইছে ত্রিপুরাবাসী? দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জোট নাকি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের 5 বছর, নাকি গ্রেটার টিটাল্যান্ডের দাবি, ভেদাভেদের রাজনীতি না উন্নয়নের বাণী? তার তথ্য উঠবে রণের জয়ধ্বনি। দেখতে চোখ রাখুন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সম্প্রচার কুরুক্ষেত্র 2023। বেঁচে আছে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ডঙ্কা। ভোটার, 7টি বিধানসভা কেন্দ্রে 59 জন প্রার্থী। প্রধান জাতীয় দলের সাথে আঞ্চলিক দলের কাকে চাইছে ত্রিপুরাবাসী? দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের জোট নাকি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের 5 বছর, নাকি গ্রেটার টিটাল্যান্ডের দাবি, ভেদাভেদের রাজনীতি না উন্নয়নের বাণী? তার তথ্য উঠবে রণের জয়ধ্বনি। দেখতে চোখ রাখুন ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সম্প্রচার কুরুক্ষেত্র 2023। কক্সুনানি থাঙাই দङ नरक टिभिबो बनाइमानो लाइभ। हेलो 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 1 2 3 4 check. Hello, check 1 2 3 4. Okay. चेक नहीं दङ माइक्रोफोन रक कक सालायनायनि जेंनाखौ गोजान गोजान बुसकांनि इलेक्शन 2023 बेलायखेनो कन्फ्यूजन नांलायजाक स्टाफनि होमबा साबो कप्लायनो सेमेया बीजेपी आईपीएफटी जुथ ताई जों जतन सायमानो सरकाराव दङै थांजाक इ 5 बोसोर बरक बाय टिकाइसा जों सायमानो बाम कांग्रेस स्टैंड बाय कैमरा स्टैंड बाय टिकाइसा गांकाय जों जतन सायमानो तिप्रा मथा प्रासारंनि बागै खरां टिसानानि बागै सेनि बुबाग्रा ब बेलायखेनो साकथारि दङ ओमफ्राय अबनि बागै साइमानि आता बुंनो साबो स्राय स्राय के कप्लायनाय आबो इलेक्शननि हियागलो नसं साइमानाय तामुं चेंनानै थाङै दङ कक सालायमुं आनरक टिभि ओ बनायमानो लाइभ आंबो सराबसा नायनाय ते कक्सुं रगस खानाय नायनाय तब तब ककाशावी। त्रिपुरा में बज चुकी चुनावी रणभेरी, चुनावी रण में उतर चुकी सियासी सेनाएं। रण किसके हाथ में है? संकल्प किसका मजबूत है? विपक्ष में किसका विश्वास है? किसकी नीतियों में राजनीति है? पक्ष या संकल्प या फिर विपक्ष की हुंकार? अब की बार त्रिपुरा में किसकी सरकार? जानने के लिए देखें त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी संप्रचार कुरुक्षेत्र 2023। নমস্কার। কুরুক্ষেত্রের তৃতীয় পর্বে আজকের এই কনক্লেভের তৃতীয় পর্বে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সুতপা, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহকর্মী শেষাদ্রি এবং আমাদের এই তৃতীয় পর্বে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি, রাজ্যের তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত। শুনবো আমরা কিছু। बुबाग्रानि लाइभआवनो दै किसा कक खानालायनाय প্রদ্যুৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মন। কিরিট প্রদ্যুৎ মাণিক্য দেববর্মন বাহাদুর হলেন ত্রিপুরার রাজ পরিবারের বর্তমান প্রধান।
কারো কাছে তিনি বুবাগ্রা, আবার কারো কাছে তিনি মহারাজা। ত্রিপুরার 186তম রাজা কিরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মা এবং রাজমাতা বিভু কুমারী দেবীর প্রথম পুত্র তিনি। 4 জুলাই 1978 সালে নয়াদিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। মেঘালয়ের শিলংয়ে তার শৈশব কাটে। The first thing I want to ask you, Maharaj, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বাবা কিরিট বিক্রম দেববর্মন ছিলেন 3 বারের সাংসদ এবং তার মা বিভু কুমারী ছিলেন 2 বারের কংগ্রেস বিধায়ক, যিনি ত্রিপুরার রাজস্ব মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যথারীতি তিনি বড় হয়ে ওঠেন রাজনৈতিক আবু। প্রদ্যুৎ মানিক্যের সমস্ত কাজ আবর্তিত হয় একজন জনহিতৈষী এবং রাজনীতিক কর্মী হিসেবে। ত্রিপুরার আদিবাসীদের আর্থসামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে ঘিরে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ধাপে তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ। 2018 সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি ছিলেন তার বোন কুমারী প্রজ্ঞা দেববর্মার সক্রিয় প্রচারক। সেই সময়ে তিনি একটি আঞ্চলিক জোট গঠনেরও চেষ্টা করেছিলেন। 2019 সালে তিনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। সেই সময়ে বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য এনআরসি মামলা দায়েরের বিতর্কের কারণে দলের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকেও বিরতি নেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সিএ বিল প্রত্যাহার করতে Shatta TV channel ni reporter rok asul ajak koksana ni bagai bubagrano doro dibe bongnai তখন তিনি Tripura hasterin sinai sikring rok poro goheno asuk jak কংগ্রেস সভাপতির bota পদ bokok থেকে kaham পদত্যাগ kachar sina করার haste Tripura ni 3 bagai মাস পর aboni bagai national jak জনজাতীয় asuk jak অধিকারের জন্য তিনি tai গঠন tabung করেন no sang khananai bini putei ইন্ডিজিনাস প্রোগ্রেসিভ 2023 অ্যালায়েন্স পার্টি, election boma hai যা hasingo thangai অল্প tong দিনের মধ্যেই sang sarai sarai tabung no অন্যতম khlai প্রধান no আঞ্চলিক thangai tong রাজনৈতিক দল টিপ্রা মাথা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং দাবি তোলে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের। দল গঠনের 2021 সালে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এডিসির ক্ষমতা দখল করেন। বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ। asuk jak 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনের Shatta প্রকারে TV channel ni media ni boro rok asul ajak kok kaham khanana ni bagai te kok rok sangna ni bagai অনর প্রদ্যুৎ বিক্রম। महाराजा, the very first thing I want to ask you, पूरे त्रिपुरा में आपने कैंपेनिंग किए हैं, पूरा त्रिपुरा में आप घूमे हैं, so how is the जोश in त्रिपुरा for त्रिपुरा मोथा? सुतपा, सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। गुड इवनिंग। कोई आपको एड्रेस नहीं करता, मैं आपको एटलीस्ट हेलो तो बोल दूँ। आप लोग यहाँ में बाहर में वेट कर रहे हैं मान के। सबसे पहले मैं अपोलोजाइज, मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें 3-4 पॉइंट्स थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। पहला है कि मेरा नाम इतना लंबा नहीं, वो किरीट मेरे फादर का नाम है। माय नेम इज प्रद्युत देबबर्मन। माणिक्य वो फैमिली का टाइटल है, मेरा नाम स्मॉल। दूसरा है कि जो आपने पूरा कहानी बताया है, व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चंस, टाइम आने में मैं थोड़ा क्लैरिफाई भी करूँगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है कहीं में। और सिंस आपने मुझे कुरुक्षेत्र में बुलाया, यू कॉल मी टू कुरुक्षेत्र, मैंने सुना था कि मेरे एंसेस्टर्स महाभारत में लड़े थे। वो त्रिपुरा के रॉयल फैमिली महाभारत में था, लेकिन आज मैं कुरुक्षेत्र में यहाँ में आया हूँ, तो शायद मैं आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कई हद तक आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। क्योंकि ज़िंदगी में
सबसे खराब चीज आपको तब लगता है जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जब आप क्या बोलना की कोशिश कर रहे हैं और कोई क्या समझने की कोशिश कर रहा है। सो जो आपका क्वेश्चन था, हाउ इज द जोश? जोश इज वेरी हाई, बट जोश इज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस दैट इस बार सबको, बंगालीज हो, तिपरासा ट्राइबल्स हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, हम सबको बैठकर, सबके सामने बैठकर एक सल्यूशन लाना पड़ेगा जिसमें ट्राइबल्स भी खुश रहे, बंगालीज भी खुश रहे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में भी प्रॉब्लम ना रहे। और ये सब तभी हो सकता है जब पॉलिटिशियंस, और मैं भी हूँ पॉलिटिक्स में, जब पॉलिटिशियंस जो भी अंडरस्टैंडिंग करे वो राइटिंग में करके पब्लिक को दिखाए, दोनों तरफ से। और जब पब्लिक बोले ठीक है, तभी हम आगे का रास्ता लें। सो जोश इज वेरी हाई, बट द हार्ट इज वेरी क्लीन। आई लव माई स्टेट and I love my people, irrespective of everyone. And I think that the only logical way of us going ahead is that we keep our Thansa, our unity, and work towards a better future for all. 2021 में तिपरा मौथा का गठन हुआ है। इसके बाद से हम अगर बोलेंगे कि 2023 में विधानसभा चुनाव ये तिपरा मौथा के लिए पहला चुनाव है, तो ये जो जीत है, जीत को लेकर कितना उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, जैसे सुष्मिता ने कहा, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछेंगे आप जीतेंगे, सब बोलेंगे जीतेंगे। आज तृणमूल है, मौथा है, बीजेपी है, सीपीएम है, शायद रामदास अठावले का पार्टी भी है यहाँ। अब आप सबसे पूछेंगे तो त्रिपुरा में 300 सीट निकल जाएगा, तो सब 60 के 60 जीत रहे या 40 के 40 जीत रहे। लेकिन ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कोई मुझे नहीं लगता जो सीरियस पार्टी जो जैसे सीपीएम, कांग्रेस और मौथा बीजेपी, वो इस इलेक्शन में हारने के लिए निकले। बहुत लोग निकलेंगे क्योंकि उनको वोट काटना है या उनको नेशनल पार्टी बनना है, तो एक वोट शेयर इतना आना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार त्रिपुरा के इतिहास में पहली बार एक आंचलिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आएगी। ये TOGS ने भी नहीं किया, ये INPT ने भी नहीं किया, ये IPFT ने भी नहीं किया। तिपरा मौथा विल बी द फर्स्ट रीजनल पार्टी which will get the maximum number of seats in the history of Tripura. यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन है कि बुबाकरा का एक अलग सा क्रेज है, हमने देखा है, टीवी में भी देखा है, पेपर्स में भी देखा है। तो अगर बोलेंगे कि बुबाकरा को देख के तिपरा मौथा को पसंद करते हैं या फिर तिपरा मौथा को देख के बुबाकरा को लोग पसंद करते हैं? मोदी को देख के सब बीजेपी को वोट करते हैं, राइट? इंदिरा गांधी को देख के सब कांग्रेस को वोट करते थे। सुष्मिता आज ममता बनर्जी का नाम 20 बार ले लिया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को देख के सब वोट करते हैं। तो मौथा छोटा पार्टी है, तो मैं लीडर हूँ, तो मुझे देखकर वोट कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक लीडर ईमानदार हो, उनका नियत अच्छा हो और उनके अंदर नफरत ना हो, तब तक आप लीडर को देख के वोट कर सकते हैं। लेकिन जीतने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो MLAs निकलेंगे, जो नेताज निकलेंगे, उनको भी एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और क्लैरिटी रखना चाहिए। तो ये जो सवाल आपने है, आज ये मुझे देखकर वोट कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर मेरे नेता यहाँ में 2-3 हैं जिसको MLA का टिकट भी चाहिए फ्यूचर में, अगर आपने ठीक से काम नहीं किया तो मेरा छवि आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। अंत में आपका क्या रिलेशनशिप रहता है अपने लोगों के साथ, आप अहंकार नहीं दिखाओगे, आप ईगो नहीं दिखाओगे और आप एक अच्छा राजनीति सफा काम करने की कोशिश करोगे, तभी पब्लिक आपको सेकंड टाइम चुनेगी। फर्स्ट टाइम लीडर की इमेज में आप आ जाएंगे, सेकंड टाइम बहुत मुश्किल होगा। अभी थोड़ा चलिए जिस बारे में आपसे पूछना था कि क्राउड फंडिंग का जो कंसेप्ट आपने त्रिपुरा में इस बार पहले हमने देखा है,
तो एक क्राउड फंडिंग बहुत जरूरी होता है, वो सच चुनाव के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमने देखा इंडिया में आम आदमी पार्टी पहले एक क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट लिए थे, आपको कहाँ से वो इंस्पिरेशन या कहाँ से आपने अडॉप्ट किए ये क्राउड फंडिंग? नहीं, वो बराक ओबामा ने किया था 2008 का शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने किया, कन्हैया कुमार व्हेन ही फॉट फॉर द फर्स्ट इलेक्शन क्राउड फंडिंग किया। तो देखिए, ऑल द रीजनल पार्टीज हमेशा दिल्ली जाते, कांग्रेस था तो आईएनपीटी जाता था, टीयूजेएस जाता था, बीजेपी है तो आईपीएफटी जाता है, और रीजनल पार्टीज गांव में बड़े बड़े बात करते हैं, ये होगा वो होगा, इसको ये करेंगे। लास्ट मोमेंट में दिल्ली में जाकर पैसे के लिए अलायंस करते थे। मैं दिल्ली गया, अलायंस नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मैं तो अपना पैसा डाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल मूवमेंट करना है तो आप पब्लिक से मांगिए। और सुतपा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आई टेल यू दिस, किसी ने 20 रुपया दिया, किसी ने 40 रुपया दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 5000 बैंक लेके भी आपके पास आ गए। बच्चा पिगी बैंक लेकर आया। कल मैं मनु में था, एक 80 साल की बूढ़ी औरत स्टेज में आकर मुझे यहाँ में चुम्मा दिया और तब मुझे 500 रुपया दिया। तो ये एक अलग इमोशन है। और मैं यहाँ में फर्स्ट टाइम पब्लिकली आपको बोलना चाहता हूँ, माई ओन आंट, मेरा खुद की पीपी, महाराजा वीर विक्रम की डॉटर आज भी है, महारानी कच्छ, उनका हस्बैंड नहीं है, बचपन में उनका कभी संतान भी नहीं हुआ, फैमिली भी नहीं है, वो 85 की है। उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का चेक भेजा मेरे अकाउंट में। तो अच्छा भी लगता है, और आज तक शायद 5-6 हज़ार डोनर्स आ गए हैं और मेरा कलेक्शन 1 करोड़ से भी ऊपर आ गया। तो क्या लगता है कि ये आपका पार्टी है, आपने 20 रुपया दिया, आपने 100 रुपया दिया, पर आपको लगता है कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये पैसा ड्रग माफिया से नहीं आ रहा है, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर से नहीं आ रहा है, ये पैसा डेफिनेटली अदानी और अंबानी से तो नहीं आ रहा है। तो अगर हम सब ने ये दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आई फेल्ट रियली बैड, मुझे दुख तब लगा जब हमारे त्रिपुरा के एमपी रेवती त्रिपुरा, उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला राजा तो भीख मांग रहा है। ये भीख नहीं है, ये दक्षिणा है, ये किसी का प्यार है, किसी का आशीर्वाद है। पॉलिटिकली आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, रेवती का पूरा अधिकार है, लेकिन जब कोई किसी को प्यार से कुछ दे रहा है, एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा है, तो ये प्यारी है। और आप देखेंगे एक्सटॉर्शन तो हर टाइम होता, भगवान के नाम में होता है। पूजा के टाइम लोग घर के अंदर चले जाते हैं, रास्ता में रोककर चंदा डिमांड करते हैं। कोई भी चीज प्यार से, श्रद्धा से अगर दिया जाए तो अच्छा है। तो ये क्राउड फंडिंग सिस्टम एक्चुअली ये इंग्लिश शब्द है, वेस्टर्न वर्ड है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान के परंपरा में पहले से था कि श्रद्धा से आप कुछ किसी को दे दे और उसी से आप काम चलाएं। तो यही मैंने किया। आपके जो तिप्रा लैंड की जो डिमांड है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सोल्यूशन है, अगर आप थोड़े खुल के बोले, क्योंकि ग्रासरूट लेवल को वो उन लोगों को आर्टिकल 2 और 3 शायद मालूम नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ में लार्जली नॉन तिप्रासा क्राउड है, तो मैं खुली आई कैन टेल यू ऑल्सो, और ये इट इज गोइंग इन टीवी ऑल्सो। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 2, 3 यूनियन टेरिटरी, सेपरेट स्टेट, आर्टिकल 244A ऑटोनमस स्टेट, आर्टिकल 275, ये सब टेक्निकल बात है। आप मुझे बताइए, मैंने कहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हिंदी वर्ड मतलब क्या है? समाधान। मैंने कहा ये मेरा डिमांड है, आपको अगर लगता है कि आपके पास मुझसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है तो आप वो डिमांड हमें राइटिंग में दीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बात,
अभी आसाम के सीएम जो त्रिपुरा में है, वो घुमा घुमा के बोल रहा है कि महाराजा तो त्रिपुरा को 2 टुकड़ा करना चाहता है। मैंने पॉलिटिकल सेपरेशन मांगा, लेजिस्लेटिव सेपरेशन मांगा, ज्योग्राफिकल सेपरेशन नहीं मांगा। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, और एक ने कहा बांग्लादेश में है, आसाम में है, मिजोरम में है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बांग्लादेश, आसाम, मिजोरम से जमीन चाहता हूं। कोई और बोल रहा था कि उसको बांग्लादेश नेपाल में इलेक्शन फाइट करना, मैंने नहीं कहा ये। मैंने कहा कि 36 गांव से 36 गांव है जो एडीसी से बाहर है, उसको आप इंक्लूड कर दीजिए, और हमारा जो एडीसी है उसको ग्रेटर बना के, एक बड़ा बनाकर उसको इंक्लूड कीजिए। ये मैंने कहा 36 गांव से। लेकिन मेरे पास इतना फंडिंग भी नहीं है, और मीडिया ने मुझे एक सांप्रदायिक इंसान बना दिया। मैंने आज तक, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग योर टाइम, मैंने आज तक नहीं कहा कि बंगालीज को बांग्लादेश डिपोर्ट करो। मैंने आज तक नहीं कहा बांग्लादेशी गो बैक। मैंने आज तक नहीं कहा कि ये जो लोग आए हैं त्रिपुरा में, इनको वापस कर दो। मैंने आज तक, किसने कहा ये? जिसने ये कहा, पाताल कन्या जमात्य, वो आज बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने कहा जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ उनको रहना चाहिए। जो इंडिया में है, जो आए हैं, कष्ट से आए हैं। मेरे फैमिली ने यहाँ में उजंता पैलेस के सामने 1971 में मेरी माता जी और मेरे फादर ने 50,000 लोगों को यहाँ में खाना दिया, कपड़ा दिया। मैं इनको क्यों खराब तरीके से देखो, नफरत से देखो? जिसने ये बोला वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने आज तक नहीं बोला चाकमा को सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डाल के एनआरसी का कि चाकमा को आप बाहर फेंक दो। मैंने कभी नहीं बोला। किसने ये बात बोला? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा एनआरसी पिटीशन। मैंने एनआरसी पिटीशन में क्या लिखा? 2 पिटीशन है एनआरसी का, एक है मेरा और एक है टीपीएफ का, जो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। मेरे पिटीशन में मैंने कहा जो त्रिपुरा में है उनको रहना चाहिए, जिसका जन्म त्रिपुरा में हुआ है वो हिंदुस्तान के नागरिक है। भविष्य में जो हुआ था पहले, अगर फिर से हुआ तो उसके लिए हमें एक पॉलिसी बनाना चाहिए। आज त्रिपुरा का जनजाति को क्या चिंता है? कुमिल्ला में 1946 में राइट्स हुआ, यहां में आए, 65 में हुआ, आए, 71 में हुआ, आए। ठीक है, मैं भी हिंदू हूं, पूजा पाठ करता हूं, मैं आई कैन अंडरस्टैंड द हर्ट एंड द पेन ऑफ हाउ टू लूज योर होमलैंड। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो किया जाए। आज शेख हसीना हिंदुस्तान की दोस्त है, हमारी फैमिली की भी दोस्त है, मेरी माता जी की अच्छी दोस्त है शेख हसीना। लेकिन ये मत भूलिए कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल, जिस दिन अमेरिका अफगानिस्तान से हटा 20 दिन के अंदर तालिबान आ गए। आज शेख हसीना है और वो हिंदुस्तान की दोस्त, वो पूरी जिंदगी नहीं रही। अंडर करंट फंडामेंटलिज्म का आज भी है बांग्लादेश में। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर कल शेख हसीना नहीं रहती है और बांग्लादेश में फिर से प्रॉब्लम होता है, 1,71,00,000 माइनॉरिटीज आज भी बांग्लादेश में है, और अगर फिर से प्रॉब्लम हुआ जो पहले भी हो चुका है तो लोग यहाँ में आएंगे। पहले से हमारी आबादी ज्यादा है, तो ये सिचुएशन ना हो उससे पहले है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बनाकर हमारी जमीन,
हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा कानून को आप बचा दीजिए और आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को बचाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लाइए। बहुत गलत बात है कि त्रिपुरा, जिसने अपने आबादी से 3 टाइम ज्यादा लोगों को लिया और आज भी लिया है, हम को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे राज्यों जिसने आज तक एक भी शरणार्थी को नहीं लिया, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम, जिसने आज तक एक डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटी को भी जगह नहीं दिया, 1 इंच जगह नहीं दिया, आपने कानून बनाया कि वो लोग को और आपको नहीं लेना है, लेकिन जिसने पहले से दिया उनको आपने फिर से ये एग्जाम किया। मैं यही कहना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या फिर आप हमें बचाइए या फिर सबको भी बोलिए रखने के लिए, क्योंकि हमने सबसे पहले ये बलिदान दिया और अच्छा काम किया है, अब उनको भी करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है नहीं, तब आप हमको जवाब बताइए क्यों नहीं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, पर मैं जानता हूं कि इसके बाद भी लोग पूछेंगे यही सवाल 1000 2000 बार, लेकिन मैंने इसको क्लियर करने का पूरा कोशिश किया। आई होप अगर आप 5% लोग भी समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, 5% भी, तो मुझे लगेगा कि आज का मेरा जो बोलना था आपको मेरा कुछ अच्छा काम निकला। अदरवाइज पीपल आर जस्ट नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट द प्रॉब्लम, आई एम द मोस्ट सेक्युलर, compassionate. I love my Bengali friends, I love my Muslim friends, I have wonderful Manipuri friends. I'm quarter Manipuri myself. I love everyone. I am not communal. Communal तो वो लोग थे जो यहाँ में झगड़ा करते थे, IPFT, रोड ब्लॉकेट करते थे। यहाँ में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, किसी के ऊपर झगड़ा नहीं होता, पत्थर नहीं फेंका जाता है। एडीसी में 2 साल में कहीं में भी किसी का दुकान में एक्सटॉर्शन नहीं हो, किसी को पीटा नहीं किया। मैंने अपने लोगों को बोला ये करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बंदूक का रास्ता से कुछ नहीं मिलेगा, प्यार से बात करो। आपका प्रॉब्लम बंगाली ट्राइबल है ही नहीं, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है नेता लोग जिसने आपको बांटा है। और ये बात बहुत देर से मैं समझा, लेकिन सबके सामने मैं बोल सकता हूँ, वो लीडर कौन, वो व्यक्ति कौन, वो इंसान कौन जो एडमिट ना करे कि मुझसे भी भूल हुई होगी, लेकिन आज मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके पूर्व पुरुषों को देखेंगे या फिर आपके पिता और माता को भी देखेंगे तो वो त्रिपुरा पॉलिटिक्स में थे। वो लोग कभी ग्रेटर या फिर अलग से बुबगरा तम कोक सका अब त हिसाब से तो मैं अपलोड खाया ना तंसने ताऊते मारे किसिंग संग ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे माता मेरे पिता लाइव माने आस्क जब मेरे फादर ने पॉलिटिक्स से त्याग लिया, या ग्रो भाई तो मोबाइल बा मैं 13 साल का था। मेरी माता 1995 में उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया। त हिसाब से तो मैं शायद 18 साल मतलब लेके हम भाई मैंने कभी उनका पॉलिटिक्स देखे ही नहीं, और मैं उनके नाम में पॉलिटिक्स भी नहीं करना चाहता। तो इस तरफ से तो अंगनों पे ठगने को रोंगनो मेरा वोटिंग खाए अपलोड खाए आपको नाम है, आपको प्रॉब्लम जानते हैं किसमें प्रॉब्लम है, मथा गिर ग्रास है रंग संग हमारे किसी सुनो आपको प्रॉब्लम मेरे डिमांड में नहीं है, ब्लैक रो हम पे आपको प्रॉब्लम है नाम में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर ये नाम मैंने